वेलकम स्टूडेंट्स। एनडीए का एग्जाम नज़दीक है और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनडीए के पूरे सिलेबस की, एक एक पॉइंट्स की। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें एनडीए के रिटन एग्जाम को क्लियर करने की बात की गई है और किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है उनकी भी चर्चा की गई है। वीडियो थोड़ी लंबी है, एंड तक ध्यान से देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीए के रिटन पेपर में पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है जिसका कोड होता है 01 और मैक्स मार्क्स है 300। इसमें मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी कम या अधिक भी हो सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं इस मैथमेटिक्स के पेपर में क्या क्या आएगा। सामान्यतः जो आप 11वीं और 12वीं की मैथ्स में पढ़ते हैं वही चीजें इसमें आती हैं, लेकिन उसमें भी विशेषकर क्या चीजें आती हैं वो अगले 8 भागों में हमने समझाने की कोशिश की है। तो आइए उनको देखते हैं। अलजेब्रा में concept of set, operations of sets, Venn diagram, De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation, representation of real number on a line, complex number, basic properties, modulus, arguments, cube roots of unity, binary system of number, conversion of number in decimal system to binary system and vice versa, arithmetic, geometric and harmonic regression, quadratic equation with real coefficient, solution of linear inequations of two variables by graphs, permutation and combination, binomial theorem and its application, logarithms and their applications. अगला भाग है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, adjoint and inverse of a square matrix, application, solutions of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule or by matrix method. Trigonometry में angles and their measures in degrees and in radians, trigonometrical ratios, trigonometric identities, sums and differences formulas, multiple and some multiple angles, inverse trigonometric functions, applications, height and distance, properties of triangles. अगला भाग है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड इन जनरल फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसी में आगे है इसेंट्रिसिटी एंड एक्सिस ऑफ ए कॉनिक पॉइंट इन अ 3-डायमेंशनल स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, direction, cosines and directions ratios, equation 2 points, equation of a plane and a line in various forms, angles between two lines and angle between two planes, equation of a sphere. अगला भाग है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस, वन टू वन, ऑन टू एंड इनवर्स फंक्शन, notion of limit, standard limits examples, continuity of functions examples, algebraic operations on continuous functions, derivative of functions at a point, geometrical and physical interpretation of derivatives, applications. और इसी में आगे हैं derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function, second order derivatives, increasing and decreasing functions, application of derivatives in problems of maxima and minima. अगला भाग है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अंतर्गत इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन रीजन्स बाउंडेड बाय कर्व्स, एप्लीकेशंस। और इसी में आगे है definitions of order and degree of a differential equation, formation of differential equation by examples, general and particular solution of a differential equation, solution of first order and first degree differential equations of various types and examples, application in problems of growth and decay. Students, अगला पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा in 2 and 3 dimensions, magnitude and direction of a vector, unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors, vector product or cross product of two vectors, applications, work done by a force and movement of a force and in geometrical problems. स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत है हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एग्जांपल्स, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डिटर्मिनेशन एंड कंपैरिजन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसका अगला भाग है प्रोबेबिलिटी। इसके अंतर्गत है रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस, इवेंट्स, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events, union and intersection of events, complementary, elementary and composite events, definition of probability, classical and statistical
एग्जाम्पल्स। और इसके आगे हैं एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, सिंपल प्रॉब्लम्स, रैंडम वेरिएबल्स एज फंक्शन ऑन अ सैंपल स्पेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स गिविंग राइज टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सब था मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके अंतर्गत आपको सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, इन सबको आप तैयार करते रहें और अंडरलाइन करते रहें कौन कौन सा पोर्शन आपका तैयार हो गया है। आइए अब आगे बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसका कोड है 02 और इसके मैक्स मार्क्स हैं 600। और ये एक बड़ा पेपर है क्योंकि इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, टॉपिक्स कवर होते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि किस चीज़ के लिए आपको कितनी तैयारी की जरूरत पड़ती है। इसमें मेजर पोर्शन इंग्लिश का होता है क्योंकि इसमें 200 नंबर का सिलेबस होता है। तो आइए हम इसके सारे पार्ट्स की बात करते हैं कि किस पार्ट में कितने नंबर होते हैं और क्या क्या उसमें चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। पेपर 2 का पार्ट ए है इंग्लिश और इसके अधिकतम अंक हैं 200। इसका कोई डेफिनेट सिलेबस या कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, सिर्फ इसमें आपकी इंग्लिश की समझ देखी जाती है और विभिन्न तरीकों से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर भी यूपीएससी ने जो बात कही है वो ये है, द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। द सिलेबस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक ग्रामर, यूजेस, vocabulary comprehension and cohesive in intended text to test the candidate's proficiency in English। आगे बढ़ने से पहले हम पेपर 2 का पार्ट बी देखते हैं जिसका हेडिंग है जनरल नॉलेज और इसके मैक्स मार्क्स हैं 400। तो ये 400 मार्क्स में क्या क्या चीजें आएंगी। पार्ट बी के अंदर ये 6 सेक्शन है। सेक्शन ए फिजिक्स का है जो 25% का होता है, यानी 400 का 25% 100 नंबर। सेक्शन बी केमिस्ट्री का है जो 15% यानी 60 नंबर का है। सेक्शन सी जनरल साइंस 10% यानी 40 नंबर का है। सेक्शन डी हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट ये 20% का है, 80 नंबर का है। सेक्शन ई ज्योग्राफी का है, ये भी 20% का है। और सेक्शन एफ करंट इवेंट्स का है, मात्र 10% यानी 40 नंबर का है। तो यदि आप इन 6 सेक्शंस को देखें तो इसमें सेक्शन डी और सेक्शन ई ये आपके बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 80 और 80 160 नंबर का आपका ये कवरेज होता है। इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 160 नंबर की होती है, यानी आपकी कुल मिला के बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप इनको कर सकते हैं। करंट इवेंट में सिर्फ 10% का वेटेज है, यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन ए से एफ तक किसमें क्या आएगा। लगभग 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर बैरोमीटर। और इसमें आगे है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी, इफेक्ट्स ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, साउंड वेव्स एंड their properties, simple musical instruments, rectilinear propagation of light, reflection, refraction, spherical mirror and lenses and human eye। और इसमें आगे है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, अर्थ एज मैग्नेट, static and current electricity, conductors and non-conductors, Ohm's law, simple electric circuits, heating, lighting and magnetic effects of current, measurement of electrical power, primary and secondary cells, use of X-rays। फिजिक्स में आगे है जनरल प्रिंसिपल इन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुलीज, सिफॉन्स, लिवर्स, बैलियंस, पंप्स, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ्स, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैरिनर्स कंपास, लाइटनिंग कंडक्टर एंड सेफ्टी फ्यूजेस। आइए बात करते हैं केमिस्ट्री की। इसके अंतर्गत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, सैम्बल्स, फॉर्मूलाज एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। केमिस्ट्री में आगे है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, फर्टिलाइजर्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, material used in preparation of substances like soap, glass, ink, paper, cement, paints, safety matches and gunpowder। केमिस्ट्री में आगे है elementary idea about the structure of atom, atomic equivalent and molecular weights and valency। जनरल साइंस के सेक्शन में आता है डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, फूड, source of energy for man, constituents of food, balanced diet, the solar system, meteors and comets, eclipses, achievements of eminent scientists। सेक्शन डी में आता है a broad survey of Indian history with emphasis on culture and civilization, freedom movement in India, elementary study of Indian constitution and administration, elementary knowledge of 5-year plans of India, panchayati raj, cooperatives and community development,
भूदान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट्स, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। इसमें आगे है फोर्सेज शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसां, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, कंसेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस, पंचशीला, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, रोल ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट वर्ल्ड। सेक्शन ई जो ज्योग्राफी के ऊपर है, इसमें है द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, latitudes and longitudes, concept of time, international date line, movement of earth and their effects, origin of earth, rocks and their classification, weathering, mechanical and chemical, earthquakes and volcanoes, ocean currents and tides, atmosphere and its composition, temperature and atmospheric pressure, planetary winds, cyclones and anticyclones. आगे है ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, precipitation, types of climate, major natural regions of the world, regional geography of India, climate, natural vegetation, mineral and power resources, location and distribution of agricultural and industrial activities, important seaports and main seas, land and air routes to India, main items of import and export of India. आखिरी सेक्शन F, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट इवेंट्स का है। इसमें है नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल, इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड विद कल्चरल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। सिलेबस के बाद अब हम बात करते हैं किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। यूं तो 11th और 12th का सिलेबस अपने आप में सफिशिएंट है। यदि आप उसको ठीक से पढ़ते हैं तो आपको किसी कोचिंग या अतिरिक्त चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 11th और 12th ठीक से पढ़िए, आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। कोचिंग के भरोसे मत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, जिसमें खासतौर से नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल न्यूज़ के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। मसाला न्यूज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए। कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स जरूर खेलिए और उसमें लगभग रोज पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप को समाज के साथ जोड़िए, सोशल वैल्यूज़ के काम कीजिए, समाज सेवा भी कीजिए और सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनिए, क्योंकि एक जागरूक इंसान वहाँ पर एनडीए में चाहिए होता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। अगली बात हम करते हैं कि पेपर करते समय किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। तो याद रखिए, यदि आपका 40% पेपर पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, जब आप पहली बार क्वेश्चन करते हैं, तो आप अन्य क्वेश्चंस को मत छेड़िए जब तक आप उस पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके नंबर और कम हो जाएं। यदि आपको सिर्फ 10-20% क्वेश्चन आते हैं और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन 40% से ऊपर अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इतने में आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम जाने से पहले बिल्कुल दिमाग को कूल रखिए, लोगों की बातों में ना आए, अपनी पढ़ाई पर यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें और सारे नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में समय से पहुंचें, क्योंकि जल्दीबाजी में आपका पेपर छूट सकता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।